Hello dear students, this is Neha, your course teacher with this Principles of Agronomy, and our course number is EAS-5111. Okay, so today we will discuss about some basic principles of agronomy, and then scope of agronomy, then relation of agronomy to other sciences. Okay, so our today's topic is these three topics. Okay, so as I told you that in our previous lecture we had discussed about the scope of agronomy, what kind of scope of agriculture, so and the definitions of agronomy. So in this lecture the basic principles of agronomy. Okay, so this is very important topic, so please pay attention and listen very carefully. Okay, and some this section will be very important in our point of exam point of view. Okay, so let us see the basic principles of agronomy. Okay, so the in principles of agronomy means that is this chapter से हमेशा frequently exams में questions आते हैं. What is the principles of agronomy? This is very important, so please note them and prepare a very good notes some regarding this chapter. Okay, so it will be very helpful for your exam point of view. Okay, so let us see what is the principles of agronomy. Okay, so planning, programming and executing measures for maximum utilization of land, labor, capital and other factor of the production. Okay, so this is the first principle for agronomy. Okay, agronomy, crop production. So क्या है? Planning and programming. So basically we plant the thing, what kind of plant, how we execute them. Okay, so this is the planning, programming and executing. Means that we are planning that how we execute the plantation, how we execute the crop and what kind of crop we wanted to be shown that particular area. ओके, सो ये सारी चीज़ें जो हैं इस सेक्शन में आती है. ओके, सो हम उसको कैसे एग्जीक्यूट करें, कैसे हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करें और किस तरीके से वो मेजर करें जिसकी वजह से हमें प्रोडक्शन अच्छा मिले. ठीक है, उत्पादन उसका अच्छा मिले. दिस इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल. ओके, एंड द सेकेंड इज चॉइस ऑफ क्रॉप एंड वेराइटीज अडॉप्टेबल टू द पर्टिकुलर एग्रो क्लाइमेट, land situation, soil fertility, seasons and method of cultivation and befitting to the cropping system. Okay, so choice of crop variety is a very important factor for our crop production. Okay, if we are choosing some exotic variety, some hybrid variety, so it will be give a great production as compared to native variety. Okay, so there are different kinds of variety, there are different kinds of resistance and tolerance variety. Okay, so this is the choosing for cultivation, choice for cultivation, crop cultivation is a very important factor. Okay, the next is proper field management by tillage, preparing field channels and bonds for irrigation. What is irrigation? Means that water application, we can say that. Okay, water application means that पानी देना पौधों को. Okay, this is called the irrigation. Okay, in agriculture terms. So proper field managed by tillage. What is tillage? Basically the tillage is a operations for the soil operations, we can say that. Plowing जो हम करते हैं through the different implements, through the different tools and use for different tools and technologies, it is called basically tillage. But okay, but what is exactly tillage we call इट दिस टॉपिक को मैं अपने आगे के लेक्चर में आपको अच्छे से समझाऊंगी. ठीक है, डिटेल में. तो अभी के लिए आप समझ जाइए कि जो हम प्लॉइंग करते हैं, प्लॉइंग क्यों करते हैं? फॉर द लूजिंग द सॉइल टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर. ठीक है, सॉइल टेक्सचर और स्ट्रक्चर को तोड़ने की वजह से, उसको वेरिएबल बनाने के लिए, ठीक है, उसको भुरभुरा बनाने के लिए हम प्लॉइंग करते हैं. तो अभी आप फिलहाल यही याद रखेंगे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं. प्रॉपर फील्ड मैनेजमेंट बाय टीलेज. ठीक है, प्लॉइंग, प्रिपेयरिंग फील्ड चैनल्स एंड बर्न्स फॉर इरिगेशन. जब हम इरिगेशन के लिए जो बर्न्स बनाते हैं, प्रॉपर चैनल बनाते हैं, ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर क्रॉप प्रोडक्शन ऑल्सो.
ओके, सो चेकिंग सॉइल इरोजन, इरोजेटेड सॉइल तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करना होता है. तो दिस इज़ द थर्ड प्रिंसिपल्स फॉर आवर एग्रोनॉमी. ओके, then adoption of multiple cropping and also mixed or intercropping to ensure harvest even under adverse environmental conditions. Okay, so जो multiple we can adopt the multiple cropping. What is the multiple cropping? The multiple cropping is like, you know, two crops are sown in same field. Okay, two crops are sown in same field for the different benefits ideas. ओके, सो ये दिस इज़ कॉल्ड द मल्टीपल क्रॉपिंग. सपोज हमने एक ही खेत में पैडी मीन्स दैट धान, ठीक है, धान और राइस की फसल उगाई. उसी खेत में हमने कुछ टाइम के लिए उसके मेड़ पे या बंड्स जो होते हैं उस पर हमने कोई पल्सेस क्रॉप उगा लिए. सपोज हमने पिजन भी उगा लिया, तो दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, मिक्स मल्टीपल क्रॉपिंग. ओके, so in cropping system we will discuss in our next lecture and another lecture, okay, in detail. So this is the multiple cropping basic. This is the multiple cropping, how, what is the multiple cropping, like that. Okay, so and mix with some kind of, you know, जब हम गेहूं के खेत पे मस्टर्ड उग जाता है, आप देखेंगे कि कहीं बहुत सारे जगहों पे वीट का जो प्लांट उगा होता है और उसी सेम फील्ड में हम मस्टर्ड की भी क्रॉपिंग ले लेते हैं, ठीक है, क्रॉप्स लगा लेते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड द मिक्स क्रॉपिंग, मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग, वी कैन सी दैट. ओके, so to ensure the harvest even under adverse environmental conditions. Okay, so this is the four principles. And then timely application of proper and balanced nutrients to the crop and improvement of soil fertility and productivity. Then correction of ill effects of soil reactions and conditions and increasing soil organic matter through the application of green manures, farmyard manures, organic waste, biofertilizers, and profitable recycling of organic wastage. Okay, so organic manure is a very important, very important factor or very important element हम कह सकते हैं. We could say some, for the improvement of our soil texture, we can say that. Okay, जब हम अप्लाई करते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर का, फार्म यार्ड मैन्योर का, काऊ डंक का, ठीक है, सो दिस इज़ वेरी ऑर्गेनिकली वो आपके फील्ड को बिना हार्म किए पोरोसिटी उसकी बढ़ाएगा, वेरिएबल बनाएगा और इम्प्रूवमेंट करेगा, ठीक है, सॉइल इरोजन को कम करेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है उसको बढ़ाएगा. ओके, सो दिस इज़ लाइक दैट. Then the choice of quantity, seeds or seed material and maintenance of requisite plant density per unit area with healthy and uniform seedling. ठीक है, तो दिस इज़ द फिफ्थ वन principles for agronomy. Okay, then proper water management with respect to crop, soil and environmental through conservation and utilization of soil moisture as well as by utilizing water that is available in excess and scheduling irrigation at critical stages of growth. ठीक है, so every crop has a very critical stage for growth and irrigations also. Okay, so हम उसके क्रिटिकल स्टेज में, हर एक क्रॉप का स्टेज होता है, ठीक है, सबसे पहले ग्रो होता है, सबसे हम कह सकते हैं कि जर्मिनेशन होता है किसी भी सीड का. जब हम कोई भी सीड उगाते हैं तो उसका जर्मिनेशन होता है, ठीक है, फिर जर्मिनेशन के बाद प्री प्लांटिंग स्टेज आती है उसकी, ठीक है, मतलब वो पूरा प्लांट नहीं बनता, सिर्फ छोटे से प्रिम्यूल ही निकल पाते हैं, ठीक है, तो वो स्टेज आती है. उस स्टेज के बाद पौधा बनता है, देन आफ्टर फ्लावरिंग होती है, देन आफ्टर फ्रूटिंग होती है, मतलब फ्रूट्स लगते हैं, उसके बाद फीलिंग होती है, फीलिंग मीन्स व्हाट, मिल्किंग होती है, अंदर जो है दाने भरने लगते हैं, ठीक है, फिर ये जो प्रोसेस है मैच्योरिटी तक का किसी भी क्रॉप का, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है, ठीक है, तो हर क्रॉप का एक अलग अलग फॉर द वाटर रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है, ठीक है, डिफरेंट क्रॉप्स के अलग अलग वाटर रिक्वायरमेंट होते हैं, अलग अलग सिचुएशन पे, अलग अलग स्टेजेस पे. मे बी आप देखेंगे कि कुछ क्रॉप में जर्मिनेशन के टाइम में ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होता है, कुछ क्रॉप में मिल्किंग जब होती है, मतलब पॉड फीलिंग होती है किसी भी क्रॉप, मतलब ग्रेन्स की या पॉड्स वगैरह की, तो उस जगह पे वाटर रिक्वायरमेंट
जिसकी ज़्यादा होती है उस जगह पे उसे पानी चाहिए ही होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द क्रिटिकल स्टेज. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर. And then adoption of adequate need-based timely and exacting plant protection measures against weeds, insect pests, pathogens as well as climatic hazards and correction of deficiency and disorders. ठीक है, सो डिसऑर्डर्स और जो डेफिशिएंसी है, डिसीजेज़ हैं, ठीक है, या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, तो ये सब को भी, ये सारे जो भी हैं टाइमली अगर हम फर्टिलाइजेशन करें अपने फील्ड पे. व्हाट इज़ द फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन मतलब न्यूट्रिएंट प्रोवाइड, टू प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट थ्रू सॉइल और थ्रू वाटर फॉर द प्लांट. ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन. ओके, सो जो हम ये जो करते हैं वो टाइमली अगर हम करें, जैसे सपोज़ जब हमें भूख लगती है हम तभी खाना खाते हैं, ठीक है, वैसे हर एक प्लांट का एक क्रिटिकल स्टेज होता है जहाँ पे उस प्लांट को क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत होती है. अगर हम उसे एडिक्वेट टाइम पे या एडिक्वेट सिस्टम के हिसाब से फर्टिलाइज्ड नहीं करते हैं तो वो क्या होता है, पौधे की बढ़वाड़ मतलब प्लांट का ग्रोथ या उसका वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं हो पाता. ठीक है, और जब वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं हो पाता तो ऑब्वियस है कि वेजिटेटिव ग्रोथ ही नहीं होगा तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी नहीं होगी. फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं होगी तो फिर पॉट्स कैसे बनेंगे? अब पॉट्स नहीं बनेंगे तो प्रोडक्शन कम आएगा. ठीक है, सो दीज आर ऑल द को रिलेटेड या इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर, वी कैन से दैट. ओके, सो नेक्स्ट इज the basic principles. So adoption of suitable and appropriate management practices including interculture operations to get maximum benefit from inputs dearer and difficult to get low monetary and non monetary input. ठीक है, तो मैक्सिमम इनपुट चाहिए हमें, मैक्सिमम आउटपुट हमें चाहिए कम से कम इनपुट लगाने में, तो हमें क्या करना पड़ता है, अडॉप्ट एक एप्रोप्रिएट हमें मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अपनाने पड़ते हैं. ठीक है, तो वो एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या क्या होता है कि आप उस फील्ड को, आप उस सॉइल को या आपके जो खेत है, ठीक है, तो आप अपने खेत को प्लॉइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक, हार्वेस्टिंग मतलब फसल काटना, ठीक है, तो प्लॉइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक एक प्रॉपर मैनेजमेंट अगर आप करते हैं तब आपको एक एडिक्वेट आउटपुट मिलता है उस क्रॉप का. ओके, सो यही कह रहा है कि एक अडॉप्शन होना चाहिए, एक सुटेबल अडॉप्टिविटी हमारे पास होना चाहिए कि हम उसको एक एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट करें, प्रैक्टिस करें और अपने क्रॉप का ध्यान रखें. दिस इज़ द प्रिंसिपल्स फॉर द एग्रोनॉमी. ओके, then adoption of suitable method and time of harvesting, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. ठीक है, सब कुछ अच्छा हो गया, प्रोडक्शन अच्छा हो गया, फ्रूटिंग हमारे क्रॉप की बहुत अच्छी हो गई, बट दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टू द टाइमली हार्वेस्टिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. ठीक है, अगर हम टाइमली हार्वेस्ट नहीं कर पाते और बेमौसम अगर बारिश हो जाती है, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल, बिकॉज वेदर इज़ अ अनप्रेडिक्टेबल. ठीक है, तो वो जब ऐसा हो जाता है, ऐसा सिचुएशन हो जाता है तो अच्छा प्रोडक्शन होने के बाद भी हमें क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट का या बहुत सारे वेदर हजार्ड्स की वजह से हमारे जो फसल होते हैं, ठीक है, हमारा जो क्रॉप होता है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है. ठीक है, तो ये सारे सिचुएशन जो अडॉप्ट करने का है, मैथड ऑफ द हार्वेस्टिंग के, हम उसे किस तरीके से हार्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पॉट्स डैमेज ना हो या हमारे ग्रेन डैमेज ना हो. तो हमारा एक एम है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को बढ़ाने का कि कम से कम इनपुट लगाएं हम और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हमें उसका मिले. ठीक है, तो दिस इज़ द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर एग्रोनॉमी. Okay, so always remember this point. Then adoption of suitable post-harvesting technologies. Post-harvesting technologies means what? After harvesting, we could say that some harvesting के बाद जब हम some kind of हम उसे जैसे गनी बैग में हम भरते हैं जो भी हमारी प्रोडक्शन होता है, या हम उसे मार्केटिंग जो हम उसे करते हैं, दिस इज़ द काइंड ऑफ पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी. ओके, हम उसे मार्केट में बेचते हैं या हम उसका बाई प्रोडक्ट तैयार करते हैं या हम उसका कुछ एक ऐसे मिसलेनियस प्रोडक्ट तैयार करते हैं जिसे हम मार्केट में ला सकें. तो दिस इज़ द दिस फिनोमिना और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इज पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजीज. ओके,
So agronomy was recognized as a distinct branch of agricultural science only since about 1900. The American Society of Agronomy was organized in 1908. Okay, so this is the data for basic principles. So this is all about the basic principle, which is some kind of 10 points. Okay, किसी 10 प्रकार का ये है और आपको ये ध्यान में रखना है बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, सो हमेशा इससे क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम पे फ्रिक्वेंटली. हमें आपको एक क्वेश्चन ये हर बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग एंड नोट्स आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो नोट्स में ये हमेशा अच्छे से आप लिख लेंगे. ओके, सो मूविंग ऑन. Agronomy is a dynamic discipline with the advancement of knowledge and better understanding of environment and agriculture. Okay, then agronomy science becomes imperative in agriculture in the following areas, that is बहुत सारे एरियाज़ में जो होते हैं वो एग्रोनॉमी में क्या होता है, जो एग्रोनॉमी साइंसेज होते हैं. मैंने ये ऐड इसलिए नहीं करा है क्योंकि एज आई अर्लियर टोल्ड यू दैट सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर एंड देन पैथोलॉजी, दीज आर द ब्रांचेज ऑफ एग्रोनॉमी. वी कैन से दैट दिस इज़ द ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर में हमारा क्रॉप प्रोडक्शन आता है और क्रॉप प्रोडक्शन में ही हमारा एग्रोनॉमी आता है. और ये सारे ब्रांचेस जो हैं जो मैंने बताया आपको, ठीक है, विच इज़ हॉर्टिकल्चर एंड देन engineering, then water requirement, soil science, these all are comes from the agronomy. ठीक है, इस वजह से हम ये मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा हुआ है क्योंकि मैंने ये पहले ही बताया आपको, ठीक है, अपने फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में. So and the next is scope of agronomy. Okay, so let us see what is the scope of agronomy. In identification of proper season for cultivation of wide ranges of crop is needed, which could be made possible only by agronomic science. Then proper method of cultivation are needed to reduce the cost of cultivation and maximum the yield and economic returns. Okay, then availability and application of chemical fertilizers has necessitate the generation of knowledge to reduce the ill effects due to excess application and yield losses due to the unscientific manner of the application. Okay, so these are the scope. ओके, सो इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, आपको जो एकदम से समझना है, जो लिखा है वही कह रहा है. ठीक है, सो जैसा वो लिखा है एज इट इज़ आपको वैसे ही समझना है. ठीक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा समझने का नहीं है. जैसे वो बोल रहा है कि आपको प्रॉपर क्या करना है, सीज़न का हमको आइडेंटिफिकेशन करना है कि कौन सा सीज़न चल रहा है और कौन से सीज़न पे हम कौन से क्रॉप लगा सकते हैं. तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, जो क्रॉप नीड होता है हमें सीज़न के अकॉर्डिंग हमारा नीड होता है, हर सीज़न पे हर क्रॉप नहीं आते. ठीक है, तो वो हमको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए थ्रू दी स्टडी ऑफ एग्रोनॉमी साइंस. ठीक है, ये हम कह सकते हैं. ठीक है, वैसे हम कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो हमारा लगता है उसे हम मिनिमम करके मैक्सिमम आउटपुट लें. ठीक है, मैक्सिमम रिटर्न लें, इकोनॉमिक रिटर्न लें, मतलब मैक्सिमम यील्ड लें, हम प्रोडक्शन लें. तो दिस इज़ द स्कोप फॉर एग्रोनॉमी. ठीक है, सो लेट अस मूव. So availability of herbicides for control of weeds has lead to development for a vast knowledge about selectivity, time and method of its application. So availability of herbicides for control of weeds. What is weed? Weed is a plant that is not wanted that particular area. It is called weed. Okay, this is now unwanted and undesirable plant which is grows in our crop plant, grows in between our crop plant which is not wanted. Okay, that is called weed. सो वीड का हम जब प्रिकॉशन करते हैं, ठीक है, वीड का जब हम रोकथाम करते हैं, मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं अगर हम वीड्स को, ठीक है, जो हमारा खरपतवार है, अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट है, उसको जब हम कम करने की कोशिश करते हैं तो हम किसके ज़रिए कम करते हैं. ठीक है, जब हमें फीवर होता है या कोई बुखार आता है या कोई हमें डिसीज़ होती है तो हम मेडिसिन लेते हैं, तो वीड के अगेंस्ट हम क्या करते हैं, हर्बिसाइड्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, एज वेल एज हम इसे वीडीसाइड्स भी कहते हैं. ओके,
तो ये है कि देन वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस प्ले ग्रेटर रोल इन प्रेजेंट डे क्राइसिस ऑफ वाटर डिमांड एंड एग्रोनॉमी साइंस। आंसर टू द क्वेश्चन हाउ मच टू अप्लाई एंड व्हेन टू अप्लाई, कितना अप्लाई करना है हमें और कब अप्लाई करना है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन विच इज़ रेज फ्रॉम दिस सेक्शन। व्हाट सेक्शन? वाटर मैनेजमेंट सेक्शन, कि हमें कितना पानी देना है और कितना रिक्वायरमेंट है हमारे क्रॉप का। ओके, सो दिस इज़ द, ये कैसे आता है? ये प्रैक्टिस से आता है आपका, या आपको ये एग्रोनॉमी स्टडी, एग्रोनॉमी साइंस का साइंस ही यही है कि हमको ये सारी चीज़ें का अध्ययन करना होता है, स्टडी करना होता है, ठीक है। देन इंटेंसिव क्रॉपिंग इज अ नीड ऑफ द डे एंड प्रॉपर टाइम एंड स्पेस। इंटेंसिफिकेशन नॉट ओनली इंक्रीज द प्रोडक्शन बट ऑल्सो रिड्यूस द एनवायरमेंटल हजार्ड्स, ठीक है। तो इंटेंसिव क्रॉपिंग क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक इंडिविजुअल चैप्टर है क्रॉपिंग सिस्टम का, ठीक है। तो उसमें मैं बताऊंगी अलग अलग टाइप के हम क्रॉपिंग सिस्टम को हम कैसे यूज़ करते हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, स्कोप क्या है, ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ, ठीक है। तो अभी हम ये डिटेल में नहीं देखेंगे, इंटेंसिव क्रॉपिंग हम आपको आगे लेक्चर में बताएंगे। द न्यू टेक्नोलॉजी टू ओवरकम द इफेक्ट्स ऑफ मॉइस्चर स्ट्रेस अंडर ड्राई लैंड कंडीशन इज एक्सप्लोर्ड बाय एग्रोनॉमी एंड फ्यूचर एग्रीकल्चर इज डिपेंड ऑन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, ठीक है। तो बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो भी हमारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो भी मुसीबतें आती है, उससे हम ओवरकम करते हैं, ठीक है। उससे हम अपने आप को या हमारे जो फार्मर्स होते हैं वो ओवरकम करके आगे बढ़ रहे हैं थ्रू दी यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। ओके, सो these are the what scope of agronomy. Okay, then we raise the relation of agronomy to the other sciences. As I earlier told you that agronomy is a very vast science for agriculture. Okay, so this is the heart of agriculture, we can say that. Okay, so let us see, agronomy is a main branch of agriculture, as well as we can say that heart of agriculture. It is synthesis of several disciplines like soil science, as I earlier told you, the soil science and agriculture chemistry, crop physiology, plant ecology, biochemistry and economy. These branches are comes under the category of agronomy sciences, ठीक है। तो वो एग्रोनॉमी साइंस के कैटेगरी में आता है। देन द सॉइल साइंस हेल्प द एग्रोनॉमिस्ट टू थ्रूली अंडरस्टैंड द सॉइल फिजिकल, chemical and biological properties to affect modification of the soil environment. Then the agricultural chemistry help the agronomist to understand the chemical composition and changes involved in the production, protection and use of crop and livestock management. Then after, the crop physiology helps to understand the basic life process of crops, to understand functioning of each parts of the plant, to determine their input requirement like nutrient etc. Okay, so this is very important, physiology, ठीक है। एग्रोनॉमी, थ्रू द एग्रोनॉमी वी कैन अंडरस्टैंड द व्हाट काइंड ऑफ फिजियोलॉजी दैट पर्टिकुलर प्लांट, ओके। क्योंकि प्लांट जो है अलग अलग टाइप के फिनोमिना, अलग अलग टाइप के प्रोसेस होते हैं फॉर द फूड प्रोडक्शन, फॉर द रेस्पिरेशन, फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इवोपोट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन ऑल्सो, ओके। तो ये सारी चीज़ों को हम समझते हैं, ठीक है, इस कौन से ब्रांच में? फिजियोलॉजी के ब्रांच में, okay। Then the plant ecology help us to understand the associate environment in which the crops grown, like the influence of weather, ठीक है। तो प्लांट इकोलॉजी के जरिए से हम वेदर, मतलब वेदर के बारे में हमें जानना भी बहुत ज़रूरी है एग्रीकल्चर में, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर, रेनफॉल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर अवर क्रॉप ग्रोथ, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये क्या करता है, हमारे एग्रोनॉमी से इस वजह से बहुत रिलेट करता है, ठीक है। देन द बायोकेमिस्ट्री शोज द वे इन विच बायोकेमिकल प्रोसेस टेक प्लेस इन क्रॉप विच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड क्रिटिकल रिक्वायरमेंट टू फेवरेबल एक्टिवेट द प्रोसेस। द इकोनॉमिक्स पेव्स द वे ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस, ठीक है। तो सारी चीज़ों को हम लास्ट में क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि हमने कितना इनपुट लगाया और हमें उससे कितना आउटपुट
मिला, ठीक है। तो इकोनॉमी इज ऑल्सो द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, सो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो हम अभी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल इकोनॉमी, दैट इज द डिफरेंट syllabus, that is a different subject, but we will study the agriculture economics in comes in, under the agronomy. Okay, so this is the relation of agronomy with the another sciences. Okay, so today this lecture is enough for today, and I hope you all got the sense. Thank you for paying attention and listening very carefully. Take care. Thank you.